Hello everybody. Welcome guys. कैसे हैं? All good? सब अच्छे हैं? Last week हम live नहीं कर सके. There were some exigencies and of course I was traveling. I had gone to help my son. He was shifting his home where he was staying. So in between of that, with all the power outages and stuff, so live didn't happen. Yeah, so this time I'm here. Thank you so much, Gopal Krishnan ji. Looking so pretty, thank you. I got bored of open hair. I said let me try something fun and funky. Good morning, good evening everybody. Good evening. So this series that we are running, where we are introducing you to our people, not like our people, introducing you to mothers who've seen success with autism and are continuously working on their child because they have seen how results come in. And more than me doing the talking, because then it's like ये तो बोलती ही रहती है, quoting the recent example, कल वाला परसों वाला, the India win, वो ट्रोल कर रहा है, वो गाली दे रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, पाकिस्तानी कुछ भी कर रहा है. इन्होंने बोला कि एक ही तरीके से जवाब होगा और वो जवाब दे दिया. अभी ट्रोल सब खत्म है ना. So the same way, instead of just talking about it, Rajni saying your child can do, this can happen, that can happen, let you see what can happen through people who are constantly every day achieving it. And the best part, you get your answers from people, not Rajni, because when you get your answers from them, it works, because it's like one candle lighting another and another and another and another and so many of them until it's Roshni everywhere. So I want to see if Supriya, are you there? Is Deepa there? We called Deepa today. Is Deepa there? Until Deepa comes in, because I can't see Deepa here. Or is she sending in a request from another ID that I don't know? I can take your questions. I can start with that, and then Deepa comes in, and then I would want you to listen to her story and how she has achieved what she has achieved and how she's just rocking it with her kid. So until then, I'm just trying to see if she's there. Shouting instantly what to do for that, ma'am. Please suggest. Shouting instantly. Sonali Nigam. A kid will shout instantly, beta bina matlab ke, wants attention. This is incorrect association. Which means, what is incorrect association? Incorrect association is, I want something, I use a different word or a different something for it. Not exactly the same word. So like a kid used to come to me, and the kid would, long back when I used to do one-on-ones. So the kid would say, wee, and mother would lift her and take her to the washroom. I said, ये क्या किया आपने? तो बोलती है उसको सुसु आया है. मैंने बोला आपको कैसे पता? कहती है उसने किया ना वी. तो incorrect association is wee for susu. Instead of saying mama susu or mama pee, whatever you want to say, mama washroom, वो सब बोलने की जगह पे बच्चे ने क्या बोला? वी. तो मदर ने समझ लिया. तो अब बच्चे को वी करना आता है, तो कौन फिर से एफर्ट डाले सू बोलना सीखने में, या उसको याद रखने में, या पी जाना है बोलने में, या वॉशरूम बोलने में. फिर नए चीज का एफर्ट है ना. तो वी कर लो, चले जाओ. So same with your kid. Sudden outburst of shouting is because he needs something. Because that gets you rushing to the kid. क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? नहीं चिल्लाते हैं पब्लिक में. टिकट. And eventually he'll continue to shout. Wah, until you will start giving
ऑप्शंस, ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा ये ले लो, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, ये ले लो. The child will never stop shouting. Yeah, Sonali, does it work that way? Huh? When you go and you give options, huh? Tell me, because I can see that scene in front of my eyes, but I'm also open to if it's any other way. So does it work? Does it happen that way, that you will then give options and then, or you will figure out, you will pull him out. Sometimes it's not he wants something, sometimes it's too overwhelming, it's too crowded, it's too noisy, I don't want to be here, or I don't want to wait in a line, I want मंदिर में प्रसाद जल्दी, और I want कहीं पे वो क्यू लगी हुई है भंडारा में तो वो नहीं चाहिए, मेरे को पहले दे दो, तो people are seeing ये चीख रहा है तो इसको दे दो, इसको दे दो. So that is the child's fast track route to getting what they want. You have to tell me if I'm on the right track of understanding your kid, or if it is another thing. And then if this is what it is, then here's the remedy. You will tell him before you start. You will tell him before you move from your house. You say, we are going to mandir. Okay, we will have to stand in a queue. And the last time, like when you go, you click pictures so that you have reference. You say, we're going to this mandir, we'll stand in a queue, or we're going to Bhandara. If you cannot click pictures, fine. Like if it is first time kind of a thing, try to pick up something from the internet if you can. Give exact expectation setting. We're doing this, you're supposed to do this, then you have to do this. If you shout, yeah, me myself 24, all right, I got it here. Yeah, say, remember, you cannot shout. If you're feeling angry, or if you're feeling hungry, if you're feeling hot, you have to say, mama, I am hot. Okay, if your child has that, is that much verbal. Otherwise, if it's zero verbal, you are going to have to get the child to use a card which he can keep in the pocket, but you'll have to figure out what. And then you say, if you shout, I will take all the, kheer or whatever. I'm just assuming a scenario. So you fit it into your scenario. If it's a mall, if you shout, that shop which we are going to go to, or that chicken shawarma which you wanted, will not happen. You remember that. We will come back from the mall without your chicken shawarma. Shout mat karna. And in between, you'll continue to keep very good, no shouting, excellent no shouting, brilliant. Like this, you will continue to, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप shout नहीं कर रहे हो, I'm very happy, very good, आप shout नहीं कर रहे हो, करके 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 आप उसको, you'll give the kid a reason for listening to you, because when you're doing this, the kid is getting that attention in the right way, and then you will build the language. I'm trying really hard to get myself on track. Like that's the name of Deepa. I don't know why she's not able to join. Deepa, are you able to join? Not able to join. I'm continuously pressing. Yeah, I hope you got your answer, Sonali. Yeah. Okay. Let me take up another question. Deepa, are you there? Yeah. You're saying I'm here, but why not able to join is I don't know. Go live with me myself 2024 isn't able to join. Why isn't able to join? Why? I'm continuously sending. Yeah, now it is not saying not able to join. Let's see, maybe she is able to join. I'll take another question until she arrives. Please allow me. Yeah, of course I'm allowing you. Go live with, yeah. Go live. अच्छा तुमको ये आ रहा है कि not allowing? I don't know why that is the way that it is. Should I send you an invite? But यहाँ से भी तो नहीं हो रहा ना. यहाँ हाँ invited, invite तो sent है तुमको.
Why it says not able to join? I don't know what to do. Okay, I'll take another question in the meanwhile. Hmm. Okay, but I don't see any questions. Shouting instantly, ये तो हो गया. Okay. Please give some tips for picky eating. Yeah. So for picky eating, see what you will do is you are going to create for picky eating, you are going to create something known as end your live video, cancel, no ending. So for picky eating, what you're going to do is, let's say, whatever it is that you want the child to eat. For example, if your child likes only wafers or chips, so keep a big piece of chip in the spoon at the backside and इतना सा या इतना सा रोटी का टुकड़ा if your child doesn't like roti. Okay, बहुत ही छोटा, and dip it in honey if your child likes honey, or dip it in chocolate if your child likes chocolate, whatever that is. Pair it again with something. Okay, and सेम चम्मच एंड यू से ये मुंह में डालोगे ना तो फिर ये मिलेगा, और वो बड़े चम्मच में वो पीछे है, अब उसको वो चाहिए, और ये भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि हनी में डिप किया है. अब स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, तो जैसे ही वो ये करे, दीपा कैन यू प्लीज ज्वाइन अगेन एंड देन सेंड. हाँ मैंने वो कर लो. तो जैसे ही वो बच्चा ये करे कि खा के थूक दिया और दूसरा खाने की कोशिश कर रहा है, आपने इतने चिप्स ग्रैब किए, अब उसने देखा मेरे चिप्स ले लिए, खा लिए, अब आपने एक थोड़ा छोटा पीस उसी चम्मच में रखा पीछे, गुस्सा नहीं करना है, पीछे रखा और आगे छोटी सी रोटी रखी, छोटी, हाँ उसमें डिप करके, बोल ये थूकना नहीं है, ये मुंह में जाएगा तो ये मिलेगा और इसके साथ फिर ये सारे भी मिलेंगे. नाउ द चाइल्ड हैज नो अदर चॉइस. एंड गुस्सा नहीं कर रहे हो तो उतना जल्दी मान जाएंगे, जितना है ये वो डांट रहे, थप्पड़ लगा फिर नहीं माने. अब उतना सा तो वो किसी तरीके से मुंह में, तो बोलो इधर रख दो, बोलो शाबाश, वेरी गुड, ईट इट, वेरी गुड, ये लो बेटा तुम्हारा चिप. द चाइल्ड बिगिंस टू बिलीव यू कि भाई ये तो दे देती है मम्मी मेरी, है ना. नाउ व्हाट यू गोना डू, नेक्स्ट टाइम रोटी का जो इतना टुकड़ा था ना वो इतना सा हो जाए. या ग्रीडी हो रहे हैं हम, है ना, और चिप जो इतना था वो इतना हो जाएगा. या बोलो ना ना ये तो तभी मिलेगा, और कटोरी में बहुत सारे और हैं. ओनली थिंग इज घर में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोले कि बेटा तू मत खा, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा. हाँ दादी नानी बोलते नहीं है लोग, बट देन दे वुड बी लाइक ओके कोई बात नहीं, आए मतलब दे नो कि हम दे देंगे, और बच्चा नोज कि ये दे देगी, तो वो मुंह ही नहीं खोलेगा कि बाद में मैं दादी के पास जाऊंगा, मैं पुश करूंगा तो दादी तो दे ही देगी. वो मत करना, क्योंकि वो होगा तो फिर ये कोई भी स्ट्रैटेजी, द चाइल्ड हैज टू बी कॉर्नर्ड, एकदम आपने कॉर्नर में दे दिया उसको कि ना बच्चा ना, तेरे को सुनना है, दैट काइंड ऑफ थिंग. जब आपने ये किया, then the child has no choice but to listen to you, है ना. that's when the child will start. Add a moderator. Can I add a moderator here? Yeah. I'm trying different ways to get to listen to Deepa's story because it's really something that you guys will love and enjoy to listen to and be inspired. But I have no clue why she's not able to join. Yeah? Okay. Okay. You got it? How to do it? Slowly रोटी का साइज बड़ा होता जाएगा और चिप का छोटा, और फाइनली चिप दूसरे वाले स्पून में रखेंगे.
उस वाले में नहीं, और फाइनली प्लेट में रखेंगे और फिर बोलेंगे आधी रोटी खत्म होगी तब ये 2 पीस मिलेगा, फिर बोलेंगे आज तो पैकेट ही खत्म हो गया, कल लाएंगे। तो what are you doing? Immediate gratification is going to delayed gratification. धीरे 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 धीरे, and you pulling it out. Yeah. Oh, by the way, I get lots of trolls on my lip colors and my sense of style and my nail paint. Yeah. Nice, ना? ऑटिस्टिक बच्चे की माँ को भी जिंदगी को खुल के जीने का अधिकार है, तुझे भी और मुझे भी। ट्रोल्स, वो क्या किया था इंडियन टीम ने, वही वाला। Shouts loudly when asked to study. Sabah Siddiqui. So what you gonna do, Sabah? Not lose your cool. Tell her with the visual schedule, this is your study time. Okay, Laddu? You have to sit down. The alarm will go, you will sit. You will start. Alarm will go, tin, 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 tin. You will stop. सुना दीजिए अलार्म वो वाला बजा के, हाँ, जो मैंने मुंह से किया। हाँ, ये होगा स्टार्ट करेंगे, ये होगा स्टॉप करेंगे। आपने स्ट्रक्चर कर दिया। अगर आपकी बच्ची डिजिटल वॉच देख सकती है, 11.10 बोर्ड पे भी लिख दिया, स्टार्ट करेंगे, सारा लिख दीजिए 11.45 तक। 11.10 रेड से लिखिए, 11.45 रेड से लिखिए, बीच वाला ब्लू से लिख दीजिए, बोलो ये स्टार्ट। अब उसको विजुअल भी दिख रहा है, अब उसको विजुअल स्केड्यूल भी है, अब उसको ऑडिटरी हैक भी है, टन 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 टन, बोलो टाइम अप, चल बैठ जा। यू सिट द किड डाउन। पहले दिन चिल्को नो असर, टोटली नो असर। यू टेक आउट द स्टफ, you start work with that. That's the way I work in class, work in class, work in class. Literally like a mountain, like a wall, कि कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और घर के जो लोग बोलेंगे अरे छोड़ दो, हटा दो, उनको अंदर बंद कर दो ताले में, बोलो अभी 1 घंटे बाद खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि बैठ जा भैया, ये थकान भी बहुत होगी, तेरी जेम्स जो यहाँ लाके है वो भी ये लेगी, तेरे सामने घालेगी, और तेरे को काम फिर भी करना पड़ेगा, और ये रोकेगी नहीं काम। When that happens is when you figure out, the kid figures out, there is no point, I better listen to mommy. उसके बाद क्या होगा? Lots of praise, lots of praise. अरे मेरा अच्छा बच्चा। बस अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर रखे। Behavior correction is the easiest thing to do when you are very, very comfortable in your skin. It is the toughest thing to do when you are worried. मेरे बच्चे का क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका, क्योंकि फिर क्या वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे बन जाए, थप्पड़, ये वो, उसको यहां से पकड़ते हम, ऐसे ऐसे हिला देते पूरा, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद तो बच्चा आ जाता फॉर्म में, बस फिर गया मैच हाथ से। तो ऐसे नहीं करना है। You will be very cool, composed, okay, and you will do what is required to be done, and the child senses it like this. कैसे आप लोग बोलते हैं ना, एजुकेटर के पास तो कुछ नहीं करता, हमारी तो हमें तो नचा देता है। तो भैया आप ओपन हो नचाए जाने के लिए, इसलिए नचाता है। एजुकेटर के पास क्यों नहीं करता? वो ओपन नहीं है, उनको मालूम है ये करना है, लेकिन वो आपको नहीं सिखाते हैं, है ना। अगर आप यही काम खुद करना शुरू हो जाएं तो कभी भी किसी भी सूरत हाल में बच्चा बिहेवियर नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसको समझ आ जाती है। सी, ऑटिस्टिक चाइल्ड विल ऑलवेज डू व्हाट वर्क्स फॉर द किड इज व्हाट ही और शी विल डू। दे नो इट। Shouting is working for them, they're doing it. Yeah, banging head is working for them, they're doing it. When it stops to work for them, they will do that which will work for them. तो उनको जो चाहिए वो तभी मिलेगा जब आपकी बात सुनेंगे। पहले दिन वो युद्ध छेड़ेंगे, आप चुप रहेंगे, लेकिन देंगे नहीं। 2 घंटा 3 घंटा, अरे कितना दूर तक जाएगा, है ना। धीरे धीरे वो सेटल होना शुरू हो जाएगा कि ये नहीं हिलती। That's where your victory starts. I hope you understood. Yeah? Okay. I will try one last time. Deepa, I don't know what is wrong. Why you're not able to join. Try another ID if possible. Yeah? क्योंकि अब तो मेरे को ये भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि Deepa cannot join.
हाँ फिर आ गया नॉट एबल टू ज्वाइन, पता नहीं तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। मेरे सेटिंग्स तो सब ओके हैं, यू शुड बी एबल टू ज्वाइन। या क्वेश्चंस, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, हाँ जी, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, ओके। नाउ if you want to understand about IEP, individual education plan, I invite you to join us in our massively powerful autism masterclass. We are going to do it on Friday, yeah, and सीखिए वहां पर पहले, ठीक है। अभी ना बहुत टाइम चला गया, बहुत टाइम चला गया, वो रोना गाना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो टैक्सेस में छुट्टी, वो रेलवे में कंसेशन, अभी बस बस, आवर चिल्ड्रन डिजर्व बेटर, है ना। इतना से बहुत नहीं हो जाता एक जिंदगी के लिए। तो द लीस्ट एज अ पेरेंट दैट यू एंड मी कैन डू इज ब्लडी हेल ट्रेन योरसेल्फ। यू ट्रेन योरसेल्फ, योर चाइल्ड्स लाइफ गेट्स बेटर, है ना। और जिसको फिर भी रोना गाना करना है तो करने दो, बोलो भाई तू कर ले, तेरा बच्चा है, मुझे नहीं करना है, मुझे ट्रेन करना है अपने आप को ताकि ये सीखे। अभी आपसे आगे आगे में एक क्लास मेरी चल रही थी, क्वांटम क्लास। जनरली आई एम नॉट वर्किंग डायरेक्टली विद चिल्ड्रन, बट क्वांटम में आई स्टिल एम। सो वो क्वांटम क्लास चल रही थी, तो मदर सेड कि 2 हफ्ते हो गए हैं, इतना लंबा गैप तो होता नहीं है क्वांटम में, बट आई वाज ट्रैवलिंग एंड देन द पेरेंट वाज ट्रैवलिंग, तो शी सेड 2 हफ्ते से टेंस एंड वंस नहीं आ रहा है। यू नो व्हेन वी डायग्नोस एंड पिन पॉइंटेड द प्रॉब्लम, कि उसको जो 10 की स्टिक दिखा रही थी मदर, वो इट इज नॉट मतलब बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि छोटे पीसेस से जोड़ के बनाइए। तो सामने रख के पहले टूथपिक्स, ईयरबड्स, खुद से उसको टेप से 10 बनवाए, फिर खोला, फिर 10 बनवाए, फिर बोला इसमें से 10 कौन से वाले, 10 कौन से वो दे दो, तो वो 10 उठा के दे रहा है, 1 कौन से वो दे दो, फिर बोला अब दे दो 12, तो उसने 10 उठाया, फिर अगला 10 उठाया तो रख दिया कि नहीं ये नहीं चाहिए, 1 और 1। कितनी देर लगी? 40 मिनट्स, 2 हफ्ते नहीं। पॉइंट हियर इज हमारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्या हमको उन्हें प्रॉपरली उनके डिफिकल्टी एरिया को डायग्नोस करना आता है कि नहीं? नहीं जी हम तो थेरेपी लेके जाते हैं, हाँ तो जाओ जाओ, वो तो आप पिछले बड़े टाइम से कर रहे हो, है ना। खुद पर कब तक ना विश्वास करोगे, कब तक? until when are you not going to trust yourself? God trusted you, God gave you that kid, but you don't want to trust yourself. नहीं थेरेपी ले जाएंगे ना, हाँ जाओ, फिर भी तो वही वही का वही होगा ना। आई फाइनली, हाय हाय लाडो मैम क्या हाय, देख पा रहे हो? ये अब मेरा वो दिख रहा है ना, बैक साइड वाला। हाँ नाउ इट्स यार, मैं आपको नहीं देख पा रही, आप देख पा रहे हो मुझे? हाँ जी, हेयर कलर भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। अच्छी लग रही है। हेलो ऑल पेरेंट्स हाँ, एंड गार्जियंस एंड इन्फॉर्मेशन एक मिनट, मैं एक इंट्रोड्यूस करती हूँ और फिर शट अप करती हूँ। सो गाइज, दिस इज दीपा, दिस इज अनदर वन ऑफ माय वॉरियर्स, एंड नाउ शी इज गोइंग टू, देखो कितना लेट हुआ तुम्हें, 25 मिनट गए। शी इज गोइंग टू बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शी इज गोइंग टू बी शेयरिंग हर स्टोरी, एंड प्लीज गिव द मैसेज टू पीपल कि अपने हाथ में चीजें लेना क्या सही है या नहीं है, या थेरेपी सेंटर से शादी कर लो और उसी के चक्कर लगाते रहो, क्या करना चाहिए? हाँ जी यस, फ्राइडे मास्टर क्लास इज 7 to 9:30 p.m. Yeah, and you can type I in the chat box and my team will send the link. हाँ जी, over to you. Yes please. जल्दी जल्दी से मैं शेयर करना चाहूंगी अपने बारे में, डेकोरम के साथ अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में मैं काम करती हूँ। हस्बैंड मेरे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। एक प्यारा सा बेटा है हमारा, कबीर परवाना, 12+ ईयर्स का है। 2+ ईयर्स में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ उसको, और उसी दिन से हम लोग काम करने में लग गए, लेकिन 12+ ईयर्स का हो गया, हमें कहीं से भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। 2024 में, ये जो मेरा अकाउंट है ना मैम, ये आपके कारण से मैंने बनाया था, पहले नहीं था इंस्टा पे। तो 24 में मैंने मैम को ज्वाइन करा,
और ये लाइव सेशन अटेंड करने के लिए, मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और आई से यानी आई टाइप करके, इस मैसेज बॉक्स में आई टाइप करके मैंने मैम को ज्वाइन करा। बस फिर हम नहीं रुके, मास्टर क्लास, उसके बाद मैंने KYCP ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने AST ज्वाइन करा, मैराथन्स ज्वाइन करे और हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और पहले नहीं लगता था, बट अब लगता है कि कहीं पहुंचेंगे। तो 2 साल से लेकर 2024 तक हम लोग खा रहे थे धक्के इधर उधर उधर है एंड देयर फॉर रिजल्ट्स, बट वी आर इन वी आर नॉट गेटिंग नथिंग फ्रॉम एनी सेंटर एजुकेटर्स। और जब हमें ये प्लेटफॉर्म मिला तो हमने जितनी मेहनत करी 1 साल के अंदर हमें रिजल्ट्स मिले। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये है मेरा बेटा प्यारा सा, मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन आप इसके जेस्टर्स देख सकते हो, इसको देख सकते हो, इसके इमोशंस चेक कर सकते हो। ठीक है, ये है, ये पूरा यहाँ तक ये पहुंच गया, यहाँ तक। आप इसका आई कांटेक्ट चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है, और चेक कीजिए कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अब आई कांटेक्ट क्या है, क्या एक्सप्रेशंस दे रहा है, ये क्या इमोशंस शो कर रहा है। तो यहाँ तक लाने के लिए 1 साल लगा, बहुत मेहनत लगी, बट ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन काम हमें खुद करना पड़ेगा। पेरेंट्स जितना काम कर सकते हैं, फादर एंड मदर जितना काम कर सकते हैं, उतना कोई बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब मैंने कैसे अचीव करा, अगर मैं ये जानना चाहूं तो 5 फिंगर मॉडल्स से जो हमने फॉलो किए मैम के साथ में, जो हमें पता चला, ये है पूरा 5 फिंगर मॉडल्स का, मैं लेके बैठी हूँ पूरे। मैम के पूरे क्वेश्चनियर्स हैं ये, कि कैसे कैसे काम करना है, ये सब हमने अचीव करना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट करा बिहेवियर से। नंबर 1 पहला जो स्टेप है, बिहेवियर हमें करेक्ट करना है, हमें लैंग्वेज बच्चे की डेवलप करनी है, हमें बच्चे को सोशल बनाना है, हमें बच्चे को उसके बाद एकेडमिक्स सिखानी है, क्योंकि बाहर जा रहा है तभी एकेडमिक्स सिखा रहे हैं उसको, तब सोशली उसको होना पड़ेगा। इसके बीच में हमें बहुत सारे सेंसरी इश्यूज भी आ सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, बिहेवियर और सेंसरी के अंदर एक बहुत छोटा सा गैप है, जो आज तक हमें पता ही नहीं, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो हमें मैम ने वो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हमें पता चला कि हम जिसको बिहेवियर समझते जा रहे थे, वो एक छोटा सा सेंसरी इशू था। उस पर काम करने पे बच्चा भी रिलैक्स और रिलीफ हो गया और हम भी रिलैक्स और रिलीफ हो गए, और हम अपने पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी डायरेक्शंस हमें मिली। ये मेरी जर्नी थी, कर रहे हैं हमें भी काम, हमें लगेगा और थोड़ा सा समय काम करते करते और हम पहुंच जाएंगे, जो कि हमें नहीं लगता था पहले कि हम पहुंचेंगे, लेकिन अब हमें एक एम, एक मंजिल, एक रास्ता दिखाई दिया है। और थैंक्स बोलना चाहूंगी रजनी मैम को कि उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आके सुन सकती हूँ, हम लोग डिस्कशन में किसी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप लोग सब मिलके मुझे खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि आप लोग काम करते हैं मेरी बात सुन के, तो रिजल्ट आते हैं। जी, अगर आप लोग बात ही ना सुनते, यकीन नहीं करते, काम नहीं करते, तो रिजल्ट कहाँ से आते, है ना। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ मैम बच्चों, सबसे पहले तो बात की मैम पेरेंटिंग कोच हैं, मतलब कहीं कि बच्चे के साथ काम कर रही है मैम। तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम लोग गलत जगह, गलत ट्रैक पे, नहीं। पेरेंटिंग कोच कह के ही मैम आप लोगों के साथ में डील करेंगे, पेरेंट्स को सिखाएंगे, क्योंकि सिखाना पेरेंट्स को ही पड़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, तब हम आगे तक चल पड़ते हैं, तब तक हम नहीं तो हम स्ट्रक हो जाएंगे। नहीं तो हम अभी तक तो यही करें ना, सेंटर पे जा रहे हैं, 45 मिनट्स की क्लास लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रेनिंग मुझे लगा ऑटिज्म की पेरेंट्स को देने की जरूरत है, जो कि मैम कर रहे हैं, मैंने कहीं और नहीं देखी। पेरेंटिंग कोचिंग मैंने कहीं और नहीं देखी, सिर्फ यहीं पर है, और यही सक्सेसफुल है आज के सिनेरियो में। क्वेश्चन ले लो। मैम हेलो, मैं हर बार तुम सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात ज्यादा नहीं करनी है, हाँ जी, सिस्टम की बात करनी है। कर रही हूँ मैम। कबीर की बात मैंने बताई, तो 5 फिंगर मॉडल्स की बात कबीर को लेके बताऊं कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। तो बिहेवियर के लिए मैंने 21 डेज तक काम करा, ओनली 21 डेज मैंने बिहेवियर कैसे करेक्ट करते हैं वो सीखा मैम से। मैं ढूंढ रही हूँ क्वेश्चन, रुको अगर है तो। हाँ, तुम बोलते रहो, क्वेश्चन ढूंढो।
तो 21 डेज में मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे के अंदर कैसे बिहेवियर करेक्ट हो सकते हैं, मुझे वो तरीका पता चल गया। तो अब जब भी मुझे लगता है कि कोई बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है तो मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ और टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। यहाँ पर दो चीजें हैं लैंग्वेज की, सिर्फ हम बोल रहे हैं वही लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज जो है वो जेस्टर्स को भी लैंग्वेज हम कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी हमारी लैंग्वेज होती है। फिर हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज होती है। तो मोस्टली हमारे बच्चे क्या करते हैं, जेस्टर्स यूज करते हैं ज्यादा, और वर्ड्स को यूज करने के लिए बहुत कंजूसी होती है उनके पास में, नहीं यूज करते हैं वर्ड्स। तो हम लोग बच्चों को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि जेस्टर्स के साथ में वो वर्ड्स भी यूज करें। क्वेश्चन आया, हाउ मच टाइम रिक्वायर्स टू ट्रेन माई सेल्फ टू ट्रेन माई चाइल्ड ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि 24 में मैंने, वो भी सितंबर में, 15 सितंबर मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने मैम को ज्वाइन करा। तो मुझे 1 साल लगा समझने में, और काम करने के काम तो हमें करते ही जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा टारगेट छोटा नहीं है, हमें बच्चे को स्कूल, फिर जॉब, मैरिज, आगे तक हमें लेके जाना है बच्चे को। उम्मीद है उसकी कि वो कर लेगा। जब हमारे पास उम्मीद है तो ये मानो कि हम, जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ काम करा, तो आज भी मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, बैठ के चीजें समझने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी मुझे सिखा रहे हैं, तो मुझे भी अपने कबीर को हमेशा सिखाते जाना है। मुझे तरीका आ गया सिखाने का, समझाने का, उसके लिए सिखाने में तुम्हें पूरा 1 साल थोड़ी लगा, तुम्हारे रिजल्ट्स तो 1-2 महीने के बाद ही आने शुरू हो गए थे। 1 डेज मैंने बिहेवियर करा। लैंग्वेज कर रही हूँ मैं, लैंग्वेज का एक प्रॉपर पिरामिड है मैम के पास में, उस पिरामिड में हमने वर्ट करा। मैम मेरे बेटे का बिहेवियर बहुत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आ जाइए स्क्रीन के इस साइड, अगर बिहेवियर है तो मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। क्या बिहेवियर है, उसके पूरे स्टेप्स होते हैं। अगर कोई बिहेवियर ऐसा है, स्टबर्न बिहेवियर है, तो हम देखेंगे वो एक्चुअली में बिहेवियर है या सेंसरी। अगर वो बिहेवियर है तो हमें उसके लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं, हमें एनालिसिस करनी होती है, एबीसी एनालिसिस बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंस एंड बिहेवियर। क्यों आ रहे हैं बिहेवियर, क्या वजह रही, क्या हैपनिंग हुई जिसके कारण से वो बिहेवियर आ रहे हैं, हमें उसकी एनालिसिस करनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप्स अप्लाई करेंगे उसको सही करने के लिए। सबसे पहले हम एडवांस्ड एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं बच्चे के साथ में, उसको बताते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस देके कि ये बिहेवियर बच्चा आप नहीं करोगे। अब ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, वो बताना भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है एक्चुअली में। फिर हम उसको उस सिचुएशन में जहां पर हमें लगा था कि बिहेवियर आया, उस सिचुएशन में लेके जाएंगे एक्सपेक्टेशन सेटिंग करने के बाद। उसके बाद अगर हमें लगता है कि वो फिर से वो कर रहा है वैसा बिहेवियर, तो हमें प्रिएम्प्टिंग बिहेवियर के पहले हमें प्रिएम्प्ट करना होता है, बताना होता है बच्चे को कि ये सिचुएशन आने वाली है, अब आपको बिहेव नहीं करना जैसे आपको बताया था। फिर भी वो करता है तो हमें उसको फिजिकली फॉलो थ्रू करना होता है, यानी उस सिचुएशन को उसको करने नहीं देना, हमें एस्केप भी नहीं करने देना, और वो चीज जिसके कारण बिहेवियर ट्रिगर हुआ था वो भी हमें नहीं करने देनी है उस बच्चे को। तो या तो वो करेगा तो सेंस ऑफ लॉस लगाएंगे, और नहीं करेगा, हमारी बात मानेगा तो अप्रेजल करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। अगर ट्रबल में है, एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, तो लैंग्वेज देंगे। कई बार बच्चे को लैक ऑफ लैंग्वेज के कारण भी बिहेवियर आता है, खड़े खड़े रो रहा है या हिट कर रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है वो। तो हम क्या करेंगे, उसको बच्चे को लैंग्वेज दे देंगे और वो सिचुएशन से निकल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट देना भूल जाते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें बिहेवियर ट्रिगर मिलेगा। तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप मैम फॉलो करवाते हैं और हम लोग फॉलो करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी फॉलो कर सकते हो। माय सन स्पीक्स विद प्रॉम्प्ट एंड ओनली से दो स्टेटमेंट्स और वर्ड्स विच वी हैव मेड हिम लर्न। क्या ग्रेजुअली बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल जी कर देते हैं, है या हम सब कुछ, हमें सब कुछ सिखाना होगा। देखिए हमने उनको सिखाना है कि वो कैसे लर्न करेंगे। जब हम उसको लर्न करना सिखा देंगे तो वो एनवायरनमेंट से भी लर्न करने लग जाएंगे। हम लोग बोलते हैं बच्चे वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं कई बार, कहाँ से सीखते हैं वो, किसी कार्टून से आगे कुछ वर्ड सीख लिया, स्कूल से कोई वर्ड लेके आ गए, तो लर्न कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं ना वो बिहेवियर बार बार बोलने का। हमने क्या करना है, उनकी रिपोजिटरी को इंक्रीज करते जाना है। हमारे भी तो लैंग्वेज का ये तरीका होता है ना, हम डिक्शनरी से लर्न करते हैं ना वर्ड्स, फिर हम सेंटेंसेस बिल्ड करने लगते हैं। छोटे होते हैं हम भी तो यही करते आगे बढ़े हैं ना। फिर हम एनवायरनमेंट में किसी से बोलते हैं, उसके वर्ड्स को हम पिक कर लेते हैं, अपने रिपोजिटरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कन्वर्सेशन में उनको निकालते हैं
बिल्कुल ऐसा ही हमारे भी बच्चे करते हैं। हमें सिर्फ उनको स्टार्ट करवाना है। एक बार आपने स्टार्ट करवा दिया, फिर वो करते जाएंगे, आपको सरप्राइजेस देते जाएंगे, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? थोड़ा सा यहाँ पे पिरामिड भी एक्सप्लेन कर दो दीपा। पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पिरामिड करते हैं तो मैंने बताया पहले पहले हम वट करते हैं। वट में हम लोग पूरी लैंग्वेज, एक कैटेगरी, प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें आसपास दिखते हैं, हम उनके बारे में एक अच्छी सारी लैंग्वेज दे देते हैं बच्चों को। क्या है, क्या कलर है, क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, इससे दे देते हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं हु पे। हु क्या है, अब हम यहाँ से शुरू करें जो चीजें बच्चे को दिखती हैं, क्योंकि वो सिखाना बहुत आसान हो जाती है। जो दिख रही है, आप छू पा रहे हो, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है बच्चे के सामने में, वो अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकता है। तो दिखा रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो, फिर पूछ रहे हो, तो हु करेंगे हम। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कैसे है, ये कौन करता है, जूता कौन ठीक करता है, फॉर एग्जाम्पल, ये हमें चाहिए होती हैं चीजें। दूध कौन बेचता है, दवाई लेने कहाँ जाना है, ठीक है, हु हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे वेयर। अब हु और वेयर देखो, अब यहाँ पर हम लैंग्वेज बिल्ड कैसे कर रहे हैं। हमने ये भी सिखाया कौन, मोची, ठीक है, जूते कौन ठीक करता है, मोची, ठीक है। फिर हम ये भी सिखा रहे कहाँ जाते हैं हम, मोची के पास। ये क्या है, लैंग्वेज की एनहांसमेंट है, और एनहांस कर रहे हैं हम उसको। फिर हमने वेयर सिखा, विच सिखा देते हैं हम, वाई सिखाते हैं हम, क्यों जा रहे हैं बेटा हम मोची के पास, बेटा जूता ठीक कराने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इतना बेसिक एग्जांपल लिया, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि क्या कराते हैं, बहुत हाई फाई कराते हैं। तो हम लो से लेकर हाई तक सब लेवल्स कवर करेंगे उसमें। वेयर हो गया, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, बीमार हो तो कहाँ जाते हैं, किस लिए गए हम डॉक्टर के पास में, वो सारे एंगल से हमने उसको दे दिया, उसकी रिपोजिटरी में, दिमाग में वो सब चीजें डाल दी। अब उसको पता है कैसे मुझे मैनिपुलेट करके यूज करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं वाई के बाद। वाई इज इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट। नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या हो जाएगा, दवाई नहीं लेंगे तो फिर तो हम ठीक ही नहीं होंगे। तो हो गया वाई इज इट इम्पोर्टेंट। हम हाउ पे आ जाते हैं। उसके बाद हाउ में हम ये सब चीजें मिला देते हैं। बीमार हो गया, अब क्या करेंगे, पहले ये हुआ, बुखार हुआ, बीमार हो गए, थर्मोमीटर लगाया, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई खाई, फिर हम ठीक हो गए। सारा हो गया हाउ। बीमार होने से लेकर ठीक होने तक का प्रोसेस बच्चे को पता चल गया कि कैसे कैसे करते हैं। अब हम इन्फ्रेंशियल और लॉजिकल थिंकिंग पे आ जाते हैं बच्चे की, कि ये दो चीजें बेटा, इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पूरा दिमाग लग रहा है, दिख कुछ नहीं रहा बच्चे को। हाउ में भी बहुत कम चीज दिख रही है उसको, जबकि वट में, हु में, वेयर में वो सब हम उसको दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसका दिमाग लग रहा है, लॉजिकली थिंक। जो रिपोजिटरी उसके दिमाग में हमने भरी, उसको तोड़ मोड़ करके वो निकालेगा बाहर, और उसको सिखाना है हमने कि हमने कैसे निकलवानी होती है। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रेन से हम कैसे निकाल के लेके आएंगे, वो हमारा कि दोनों चीज में डिफरेंस क्या है। लॉजिकली सोच बच्चे क्या डिफरेंस है, इसमें ये चीज फाइंड करके देख, ये पिक्चर है, इसमें गलत क्या है, क्या गलत है इसमें देख। अब मैं कहूं कि ये क्या, ये सही है बेटा, क्या ये सही है, क्या मैंने इसको उंगली में पहन रखा है, ये सही है, नहीं सही, क्यों, क्योंकि ये तो फोन पे लगाते हैं, उंगली में नहीं पहनते हैं। उंगली में क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं उंगली में। ये इन्फॉर्मेशन सब हम उसको देते जाते हैं। आपका सवाल क्या हमें सारा कुछ देना होता है, नहीं। एक बार ही बच्चे का दिमाग लॉजिकली सोचने लग जाता है, तो वो चीजों को देख के ग्रैब करने लगेगा अपने आप, कि उसका परसेप्शन वैसा बन जाएगा, वे ऑफ थिंकिंग वैसी बन जाएगी। वही हमने करना है। उसके बाद वो अपने आप चलता जाएगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट से पिक करता जाएगा, वैसे वैसे उसको तरीका पता है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। इसके बाद हम बैक पिरामिड पे चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा हम ही बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये कौन होता है, नहीं, उसको भी आना चाहिए। कन्वर्सेशन का मतलब तो यही है ना, हम वन वे कम्युनिकेशन को कन्वर्सेशन नहीं कहते हैं। कन्वर्सेशन हमेशा टू वे होनी चाहिए। तो बच्चे को ये भी आना चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ में बैठ के बात कर रहा हूं, तो मुझे सवाल भी पूछने हैं उससे, सिर्फ जवाब नहीं देना। मैं रोबोट नहीं हूं, ओनली मुझे पूछना भी है। तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग, और जो हम बैक पिरामिड चलते हैं, बेटा अब तुम पूछो व्हाट क्या है, तुम पूछो हु क्या है, तुम पूछो व्हेन क्या है, तुम पूछो वेयर क्या है, तुम पूछो हमसे हाउ क्या है। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो निकल के आएगी, वो भी पूछेगा हमसे जो उसको नहीं पता है, उसको तरीका भी आ जाएगा। अब हम स्क्रिप्टिंग ऐड कर देते हैं बीच में, दो बच्चों को दादी नानी के साथ, आपस में फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ में, ब्रदर सिस्टर उनके साथ में हम लिखते हैं प्रॉपर क्वेश्चनिंग आंसरिंग दोनों पार्ट की।
दोनों, यानी दोनों पार्ट मीन्स दो बच्चे हैं या दादा या बच्चा है या मम्मा या बच्चा है, ऐसे करके हम रोल प्ले करते हैं कि आपने ये सवाल पूछना है तो आपने ये जवाब देना होगा, सामने से ये सवाल आएगा तो वहां से ये जवाब आएगा। हम लोग पूरा उस चीज का एक बना के मैप और फिर हम बच्चों को वो चीज करवाते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आप सोसाइटी में जा रहे हो, कैसे आपको डेकोरम मेंटेन करना है सोसाइटी का, कितने गैप में आपको खड़ा होना चाहिए, कितनी लाउड वॉइस में बोलोगे, कितनी लो वॉइस में आप बोलोगे, क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा वर्ड हम नहीं यूज कर सकते, कोई ऐसा एक्सप्रेशन हम नहीं दे सकते वर्ड्स के साथ में, जो हम लैंग्वेज यूज करें वो क्या प्रॉपर जगह पे लगा रहे हैं, सी से में के, ये चीजें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो हम जब स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम उनको प्रॉपर अपनी जगह पर फिट कर देते हैं, हर हर चाबी के ताले के अंदर फिट कर देते हैं। अब वो लॉक हो गया बच्चे के ब्रेन में, उसको एक अच्छी सी प्रैक्टिस मिल गई है कि कैसे वो सोसाइटी में जाके बिहेव करेगा और कैसे वो अपनी रिपोजिटरी वाली लैंग्वेज को यूज करने वाला है। कोई और सवाल? दीपा जी, guys, give me one word for my student. हाँ, give me one word for my student. एक मैम, साल के अंदर अगर एक इंसान इतना सीखता है। मैम मैंने ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड से एक कोर्स कर लिया है, आपकी सिखाई हुई चीजों से 1 गो में ऑनलाइन टेस्ट था, एक्सीलेंस के साथ में मैंने क्लियर कर लिया, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया ऑक्सफोर्ड का ऑनलाइन वाला, और आज मुझे आरसीआई का शॉर्टलिस्ट होके एक कोर्स में अमेजिंग, जी मैम, अमेजिंग। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना। और यही मेरी डीप रूटेड डिजायर है। बच्चों को पढ़ाना अब डिजायर नहीं है मेरी, क्योंकि मैं कितने ही पढ़ा लूंगी यार, मैं कितने ही पढ़ा लूंगी। मैंने जय को खड़ा कर दिया सारी दुनिया को ये देखने के लिए कि ये हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे औरों को खड़ा कर दिया। अब मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, अब मुझे मदर्स और फादर्स को ट्रेन करना है, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना, अब ये एक दीपा कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। आज के सिनेरियो में पेरेंट्स को कितना जरूरी है ट्रेन और टीच करना, क्योंकि जो रेशियो है ऑटिज्म का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसी तो मौत से मैं ये सुनती हूँ 50, किसी से 30 सुनती हूँ, इवन मैंने 11 भी सुना है। 11 बच्चों पे एक ऑटिज्म एडीएचडी आ रहा है। अगर 11 बच्चों पे एक आ रहा है तो हमारे लिए मैंडेटरी है ये चीजें सीखना। इसलिए नहीं सिर्फ कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक है, हमें सोसाइटी में मिलने वाले हैं भाई और बच्चे, तो अगर हमें उनको ट्रीट करना आता है तो उनके लिए एक सुंदर सी सोसाइटी बन जाएगी। और हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं, कुछ जानी रहे, कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चीज है अगर समझ में आ जाए तो। सीखिए, आई टाइप कीजिए, आई टाइप करेंगे यहाँ पर तो मैम के पास से आपको एक लिंक आएगा मास्टर क्लास का। 2 घंटे आपको मैम को सुनने का मौका मिलेगा। अगर आप 2 घंटे मैम को सुनते हैं तो कोई एक टेक्निक अपने बच्चे पे लगा के देखिए। अगर वो टेक्निक आपके बच्चे पे काम कर रही है, दिल से लगाइएगा, देखिए, है ना, दिल से लगाएंगे तो वो टेक्निक काम कर रही है, दैट मीन्स आपके लिए प्लेटफॉर्म सही है। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। मैंने आई टाइप करके ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि हाँ मेरे को और जानना है, तो मैम के पास और बड़े प्रोग्राम है, और बड़ा है केवाईसीपी का प्रोग्राम है ऑनलाइन, वो मैंने मैम का ज्वाइन करा। उसमें टेक्स्ट हेल्प मिल रही थी, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ऐसे टेक्स्ट हेल्प मिल रही थी, वो 24 आवर्स आपको मिलती रहेगी टेक्स्ट हेल्प। ठीक है, 1 साल का प्रोग्राम था, 1 साल कर लिया, मुझे लगा नहीं मुझे तो और भी सीखना है। मैंने मैम का लाइफ टाइम का फिर प्रोग्राम ज्वाइन करा। लाइफ टाइम के प्रोग्राम को ज्वाइन करके मैंने फिर ये सीखा, और मतलब मैम आज के टाइम में एक दो दिन की क्वेरीज आ जाती है मेरे पास में कि पेरेंट्स की जो परेशान होते हैं, और बात करके उनको लगता है इतनी तो परेशानी थी नहीं बड़ी, तो है भी नहीं इतनी बड़ी परेशानी जितनी हमें लगती है। अगर हमने बिहेवियर करेक्शन अगर मैं बता रही हूँ मैंने 20 डेज में सीख लिया है, तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते, अप्लाई भी कर सकते हैं हम। मेरे बच्चे के सिर्फ 2 बिहेवियर रह गए हैं, देखो मैं आपको बता रही हूँ, सच में 2 बिहेवियर अभी भी रह गए हैं। एक वो फोन का बिहेवियर है उसका, ठीक है, जो मैं बिहेवियर नहीं मानती, मैंने मैम से ये भी चीज सीखी है, फोन बिहेवियर नहीं है आज के टाइम में। अगर ये फोन नहीं होता तो क्या हम आप कम्युनिकेट कर सकते थे?
तो हम क्यों मानते हैं हमारे बच्चे कम है किसी से? हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। हम उनको फोन यूज करना सिखाएंगे, ये रोक नहीं है फोन, लेकिन सही से यूज करना एक तरीका वो आना चाहिए। तो मेरा टारगेट वो है बिहेवियर में अभी जो मुझे करना है, और कोई एक आधा और बिहेवियर होगा जो टाइम टू टाइम आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, मैं अप्लाई करती रहूंगी, तो ये हो जाएगा। लैंग्वेज भी हो जाएगी। एकेडमिक्स में नहीं जा रहा बच्चा, जरूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स में जाएगा। मैम बहुत अच्छा एकेडमिक्स कराते हैं, मैं बच्चे को करवा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि बच्चा कर लेगा एकेडमिक्स, लेकिन बहुत स्लो कर रहा है वो, लेकिन कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज आ जाएगी, सोशल भी आप ला सकते हो बच्चे के अंदर। अगर सब हम ला सकते हैं तो हम एक ऐसा बच्चा कर सकते हैं खड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। मैंने एक मदर का जो मेरा रोल था वो मैंने प्ले कर दिया। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब भी मेहनत करो। जिस भी लेवल की हमें हेल्प चाहिए वो मैम की तरफ से हमें मिल जाएगी। चलो जी, थैंक यू सो मच। आई विल ऑल्सो रश एंड फॉरएवर प्राउड ऑफ यू दीपा। ऐसे ही काम करते रहो, कीप लाइटिंग मोर एंड मोर कैंडल्स। मैम ये पता है क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा था? शायद और भी पेरेंट प्रॉब्लम हो। हम ये इंस्टाग्राम करते हैं ना, तो कई सारी परमिशन हम डिनाई कर देते हैं, तो वो सारी परमिशन मैंने अलाउ करी, दोबारा से इंस्टॉल करा इंस्टाग्राम, और फिर ये चला। अच्छा, हाँ, मेरे एंड पे कोई नहीं थी इशू, पर पता नहीं, मैं तो करी जा रही थी, तो यू वर नॉट हैपनिंग। एनीवे, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। माय लव टू कबीर एंड टू यू, या, एंड bye bye. And people, I will see you at the masterclass 7 to 9:30 Friday.